students, welcome to my channel Core Grammar and English Education. So if you are new to the channel, subscribe the channel and hit the bell icon so that you get the regular notifications that I upload regarding English language and English literature. Okay, so let us start with the video. So today in this video I am going to explain Merchant of Venice written by Shakespeare. Okay, William Shakespeare. So in this particular video we are going to have a detailed explanation of Act 1 Scene 2. So let us see what happens in Act 1 Scene 2. So first of all, let us know where does this scene take place. So Act 1 Scene 2 takes place in a hall in Portia's house. Okay, so as you already know कि Portia कौन है, Portia Belmont की queen है, ठीक है, और उनके घर में ही ये सीन होने वाला है. ओके, तो सीन में हम लोग इनिशियली दो कैरेक्टर्स को देखेंगे. हु आर दोस टू कैरेक्टर्स? द टू कैरेक्टर्स आर योर Portia, obviously because that is her house, and secondly is your Nerissa. And who is Nerissa? Nerissa is the servant. Okay, more than a servant, she is like a friend to Portia. Okay, she stays with Portia only in Belmont at her palace. Okay, so let us start. So first Portia says, by my troth, Nerissa, my little body is weary of this great world. Okay, so what does Portia says? Portia says that indeed Nerissa, my little body is tired of this great world. तो Portia बोलती है कि देखो ये दुनिया का इतना प्रॉब्लम्स है, ये दुनिया में इतना सारा ट्रबल्स है कि मेरा बॉडी धीरे धीरे ये ट्रबल्स हैंडल करते करते टायर्ड हो जा रहा है. तो Nerissa बोलती है, You would be, sweet madam, if your miseries were in the same abundance as your good fortunes are, and yet for aught I see, they are as sick that surfeit with too much as they that starve with nothing. It is no mean happiness, therefore, to be seated in the mean superfluity comes sooner by white hairs, but competency lives longer. Okay, so see, I will first read the normal text, okay, the Shakespearean text, and after that I will tell you in easy language also. Okay, I will give the paraphrase also. So let us see what Nerissa says. जब Portia बोलती है कि मैं दुनिया का इतने ट्रबल से बहुत परेशान हूँ, तो Nerissa बोलती है, You would be tired, dear lady, if you had as many miseries as you have good fortunes. Okay, तो Nerissa बोलती है कि देखो, जिसके पास fortunes है, जिसके पास बहुत सारा fortunes है, उसके पास तो miseries भी आने वाला है ही. Yet as far as I can observe, those people are just as sick who have too much as others who are ill, starving on nothing. ठीक है, तो बोलता है देखो ट्रबल दोनों टाइप के आदमी के पास आता है. एक जिसके पास कुछ नहीं है उसको भी बहुत प्रॉब्लम होता है. सेकेंडली जिसके पास बहुत ज़्यादा है उन लोगों को भी ट्रबल होता है. तो तुम्हारे पास ना सब चीज़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए तुमको इतना ट्रबल है. इट इज़ नॉट बैड फॉर्चून देन टू बी सिचुएटेड बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स. द मैन हु हैज़ too much soon grows white-haired, but he who has just enough lives longer. तो Nerissa बोलती है देखो कोई भी चीज़ का ज़्यादा होना भी प्रॉब्लम है, कम होना भी प्रॉब्लम है. ओके, कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा होता है तो उसमें भी ट्रबल फेस करना पड़ेगा, और कोई भी चीज़ अगर कम है तो उसमें भी हम लोगों को ट्रबल फेस करना पड़ेगा. तो बेस्ट क्या है, अगर जितना रिक्वायर्ड है उतना चीज़ है उसमें ही हम लोग हैप्पी रहेंगे. तो फॉर्च्यून भी, अगर खुशकिस्मती भी अगर एक प्रॉपर अमाउंट में हो, ठीक है, तभी भी हम लोगों को अच्छे से हम लोग रह पाएंगे. इफ़ इट्स मोर देन ऑल्सो प्रॉब्लम, लेस देन ऑल्सो प्रॉब्लम. देन सी व्हाट Portia says. गुड सेंटेंसेस एंड वेल प्रोनाउंस्ड. Portia बोले कि हाँ तुमने बहुत अच्छा बात कहा है और बहुत अच्छे तरीके से बात को कहा है. Nerissa बोलती है They would be better if well followed. तो Nerissa बोलती है ये सब बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये तभी जाके होगा जब आप ये बातों को फॉलो करेंगे. Portia बोलती है If it were as easy to do good as it is to know what is good, then small chapels would be great churches and poor men's cottages would be royal palaces. Okay, तो देखो Portia बोलती है कि सब चीज़ जो बोला जाता है वो अगर करने में इतना ही ईजी होता ना, तो मैं अगर बोलता तो एक
हट भी जाके पैलेस में कन्वर्ट हो जाता। देखो वो क्या बोलती है, इफ टू डू वेयर एज इजी एज टू नो व्हाट वेयर गुड, to do chapels had been churches and poor men's cottages, princes' palaces. It is good divine that follows his own instruction. I can easier teach 20 what were good to be done, that one of the 20 are to follow mine own teaching. I will explain you in easy language. Okay, first listen to the real text. The brain may devise laws for the blood, but a hot temper leaps over a cold decree. Such a here in madness the youth to skip over the meshes of good counsel the cripple. But this reasoning is not in the fashion to choose me a husband. Oh me, the word choose I. I may neither choose whom I would, nor refuse whom I dislike. So it is the will of a living daughter curbed by the will of a dead father. It is not hard, Nerissa, that I cannot choose one nor refuse none. Okay, इसका मतलब क्या, देखो पोर्शिया ने बहुत बड़ा एक स्पीच दिया है and it's very important also. Okay, mark this particular paragraph. Okay, तो नेरिसा जब बोलती है कि ये चीज़ तुम फॉलो करो तो लाइफ में खुशी रह पाओगे, तुमको लाइफ में बर्डन नहीं लगेगा, तुम्हारे लाइफ में सब चीज़ फॉर्च्यून भी ज़्यादा है इसलिए प्रॉब्लम है। तो पोर्शिया बोलती है कि देखो जो चीज़ मुंह से बोला जाता है वो एक्चुअली में करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो कोई भी आदमी कुछ चीज़ बोल के अपना लाइफ में सक्सेसफुल हो जाता। ओके, ही इज़ अ गुड प्रीस्ट टू फॉलोज हिज ओन टीचिंग्स, ठीक है, बोलता पंडित जो लोग जो रहते हैं, ठीक है, जो पंडित इन द सेंस प्रीस्ट लोग जो रहते हैं, ठीक है, बड़े बड़े ज्ञानी गुनी आदमी, उन लोग सबको इतना बड़ा बड़ा भाषण देते हैं कि ये करो वो क्या करो, ठीक है, लेकिन क्या वो रियलिटी में खुद वो करते हैं? तो बोलना किसी को बहुत ईजी होता है लेकिन उसको करना बहुत हार्ड होता है। यहाँ पर रियल मीनिंग वो है कि टू से समवन कि डू दिस थिंग इट्स वेरी इजी, बट डूइंग इट योरसेल्फ इज क्वाइट हार्ड। I can more easily teach 20 pupils the right path to follow than to be one of the 20 and follow my own teachings. बोलता मैं सबको बता दूंगा, आज ये होमवर्क कर लो, ये ऐसे कर लो, ये पोएम कर लो, ठीक है, सबको मैं टीचर बन के सबको ज्ञान दे सकता हूँ, लेकिन वही चीज़ जब मुझ पे आएगा कि तुम करके दिखाओ, ठीक है, तब करना वो चीज़ शायद पॉसिबल ना हो। ओके, तो पोर्शिया बोलती है कि देखो तुम तो टीचर की तरह बहुत कुछ बोल रहे हो नेरिसा, बट रियलिटी में वो करना खुद के लिए इतना ईजी नहीं है। द माइंड कैन ड्रॉ अप लॉस फॉर द बॉडी टू फॉलो, बट द हीट ऑफ डिज़ायर जम्प्स ओवर सच कोल्ड लॉस। तो देखो हम लोग कितना लॉस बनाते हैं। एग्जाम्पल पकड़ लो कि हम लोग सोचे हैं कि नाउ देयर इज लॉकडाउन, सो वी विल स्टडी अकॉर्डिंग टू अ शेड्यूल, ओके, वी विल मेंटेन अ टाइम टेबल, ठीक है, तो हम लोग माइंड में बना लेते हैं कि ये करेंगे, लेकिन क्या रियलिटी में वो पॉसिबल होता है? वो पॉसिबल नहीं होता है। दूसरा कुछ आ गया, दूसरा किसी ने क्लास शेड्यूल कर दिया, एनीथिंग, ओके, न्यू थिंग्स क्रॉप अप, और हम लोग जो भी अपना मन में सोचते हैं वो लॉज हम लोग खुद ही उसको तोड़ देते हैं। द मैडनेस ऑफ यूथ विल मेक वन लीप ओवर द नेट ऑफ गुड एडवाइस। तो बोलते हैं ये जो यूथ है, यूथ माने यंग एज में सबका मन में एक मैडनेस रहता है, एक क्रेजी एटीट्यूड रहता है, ठीक है, तो ये क्रेजी एटीट्यूड या ये मैडनेस जो भी गुड एडवाइस है, इसको हम लोग गुड एडवाइस को छोड़ देते हैं। मैंने जैसे सोचो पेरेंट्स हम लोगों को बोलते हैं ये मत करो वो मत करो, ठीक है, तो हम लोग पहले सुनते हैं हाँ मम्मी पापा जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, लेकिन फिर हम लोगों का अपना दिमाग का कीड़ा जैसे काटता है, फिर हम लोग वो सब चीज़ भूल के फिर अपने रूट में ही आ जाते हैं, ठीक है, मेजॉरिटी यही करते हैं, ठीक है। तो पोर्शिया वही बोलती है कि दिमाग में लॉ बनाना बहुत इजी है, लेकिन वो लॉ को रियल लाइफ में फॉलो करना इतना भी इजी नहीं है। ओके, द मैडनेस ऑफ यूथ विल मेक वन लीप ओवर द नेट ऑफ गुड एडवाइस जस्ट एज अ हेयर अवॉइड्स द स्नेयर। ओके, तो बोलते जैसे देखना हेयर मतलब क्या है? तुम्हारा रैबिट, ठीक है, तो जैसे रैबिट अपना ट्रैप से बच के भागने का कोशिश करता है, तो हम लोग भी ये गुड एडवाइस को एक ट्रैप की तरह मानते हैं, ठीक है, तो हम लोग भी इस ट्रैप से बच के भागने का हमेशा कोशिश करते रहते हैं। ओके, बट दिस काइंड ऑफ लॉजिक इज नॉट द काइंड दैट विल गेट मी अ हस्बैंड, ठीक है। तो पोर्शिया बोलती है कि मेन तो अभी मेरा ट्रबल है हस्बैंड चूज करना, ठीक है, तो मेरा मन अभी बहुत कुछ चाह रहा है, लेकिन मैं भी कुछ लॉस से बंधी हुई हूँ, ठीक है। एक्चुअली में क्या था, पोर्शिया का जो शादी होना था वो पोर्शिया अपने मन से नहीं कर सकती थी। ओके, पोर्शिया कुडंट चूज हर हस्बैंड ऑन हर ओन चॉइस। ओके, पोर्शिया अपने मन से नहीं कर सकती। उसके पापा ने एक सिस्टम लगा के रखा था कि कास्केट सेरेमनी, 3 कास्केट रहेंगे, उसमें से जो सही कास्केट चूज करेगा
वही आदमी पोर्शिया से शादी कर पाएगा। तो पोर्शिया बोलती है कि देखो ये मन का डिज़ायर वगैरह, मैंने तो बहुत कुछ बोला कि मन का डिज़ायर तुम्हारा कोई भी लॉस को तोड़ सकता है, लेकिन मेरा मन का डिज़ायर एक लॉ को तोड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, क्यों? ये मेरे पापा ने बनाया है। Oh, it is not a case of choosing. I neither choose the one I should like nor refuse the one I dislike. For the desire I may have in life are checked by the desires of a father who is dead. ठीक है, तो बोलता है देखो मेरा जो डिज़ायर है वो डिज़ायर मेरे हाथ में नहीं है। भले ही डिज़ायर मेरे मन के हैं, लेकिन वो एक ऐसे लॉस के साथ इंटरलिंक्ड है जो लॉ को अगर मैं तोड़ दूँ तो मेरे पापा का जो मेन मेरे लिए जो कंसर्न था वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, मैं पापा को ऐसा करके धोखा नहीं दे सकती अपना चीज़ को ऐसा करके, मैंने लॉ को तोड़ के। ओके, आई मे हैव इन लाइफ आर चेक्ड बाय द डिज़ायर्स ऑफ फादर हु इज़ डेड। इट इज़ नॉट हार्ड नेरिसा दैट आई कैन नीदर चूज़ नॉर रिफ्यूज़ अ हस्बैंड। ठीक है, तो पोर्शिया नेरिसा को बोलती है कि देखो मेरा किस्मत ऐसा है कि ना मैं हस्बैंड जो मुझे चूज़ करेगा उसको रिफ्यूज़ कर पाऊँगी, ना मैं खुद से जाके कोई लड़के को जिसको मैं पसंद करती हूँ बोल पाऊँगी कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। ओके, तो हम लोग इतना तक क्या देखे वो एक शॉर्ट मैं बताता हूँ। हम लोग आज पढ़ रहे हैं एक्ट 1 सीन 2। ओके, तो ये हॉल इन पोर्शियाज हाउस में हो रहा है, हॉल इन पोर्शियाज हाउस। तुम लोग सब ये लोकेशन को थोड़ा अच्छे से मार्क करोगे बिकॉज क्वेश्चंस आता है वेयर डज दिस सीन टेक प्लेस एंड एवरीथिंग। ओके, और हम लोग मेन जो यहाँ पर कन्वर्सेशन देख रहे हैं, व्हाई आई एम डूइंग दिस थिंग ऑन द बोर्ड सो दैट जस्ट अ स्मॉल रिकैप और समराइज वट एवर यू कैन से वी कैन गेट अबाउट इट, क्योंकि स्टोरी लेंदी है। हम लोग पढ़ते पढ़ते कभी कभी हम लोगों को उसमें ट्रैक लूज हो जाता है कभी कभी, या कभी कभी थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है। ओके, so always after reading 1 or 2 pages what I suggest is that in your copy try to write what happened in that particular page. I would suggest every page, after you read every page, do that thing, it will help you. तो यहाँ पर हम लोग किसको किसको देखे, एक देखे पोर्शिया, एक देखे उसके सर्वेंट नेरिसा। तो पोर्शिया का भी तुम लोग लिख के रखो कि पोर्शिया कौन है, क्वीन ऑफ बेलमोंट, नेरिसा कौन है, सर्वेंट। ओके, तो मेन हम लोग इन दोनों का कन्वर्सेशन देख रहे हैं और इससे हम लोगों को पता क्या चल रहा है कि नेरिसा पोर्शिया को एडवाइस दे रही है, क्योंकि पोर्शिया अपने आप को लेके, अपना फ्यूचर को लेके टेंस्ड है। ठीक है, पोर्शिया को ऐसा लगता है कि मेरा फॉर्चून है, लेकिन फॉर्चून रहने के बावजूद भी मैं इतना टेंस्ड हूँ, मैं अपने चॉइस के हिसाब से नहीं चल पा रही हूँ। मेरे पापा ने ऐसा सिस्टम लगाया है कि ना मैं हस्बैंड जो मुझे चूज़ करेगा उसको ना बोल पाऊँगी, ना मैं खुद से जाके कोई लड़के को चूज़ कर पाऊँगी अपने शादी के लिए। ओके, तो इतना तक हम लोगों ने देख लिया। नाउ लेट अस सी व्हाट डज नेरिसा से। नेरिसा बोलती है योर फादर वॉज एवर वर्चुअस, द होली मैन एट देयर डेथ हैव गुड इंस्पिरेशंस, therefore the lottery that he hath devised in these 3 chests of gold, silver and lead, whereof who chooses his meaning chooses you, will no doubt never be chosen by any rightly, but one who shall rightly love. But what warmth is there in your affection towards any of these princely suitors that are already come? तो देखो नेरिसा क्या बोलती है। नेरिसा बोलती है देखो तुम्हारा पापा तो गधा नहीं है। किसको बोलती है? पोर्शिया को। अब देखो गधा ऐसा वर्ड्स यूज नहीं किए, बट एज वी आर गेटिंग द एक्सप्लेनेशन अ बिट इन हिंदी एंड इंग्लिश, सो वैसे सेंस में है। ठीक है, तो पोर्शिया बोलती है कि देखो तुम्हारा पापा कोई माने ना समझ आदमी नहीं है। योर फादर वॉज ऑलवेज अ गुड मैन एंड सच मैन एट दैट डेथ हैव गुड इंस्पिरेशंस। तो बोलते ये आदमी जिन लोग तुम्हारे पापा जैसा जो आदमी है, नोबल मैन रहते हैं, गुड मैन रहते हैं, तो इन लोगों का डेथ के टाइम में भी ना इन लोग अगर कुछ काम करके जाए उसमें भी कुछ वैल्यू रहता है। सो द ट्रायल ऑफ चांस विच ही हैज़ प्लान, नेमली द चॉइस बिटवीन 3 boxes of gold, silver and lead, in which the one who chooses his meaning correctly will win you, will I have no doubt never be guessed correctly by the degree of love
which you may have for any of those royal candidates for your love who has already come. तो बोलता है देखो तुम्हारे पापा ने जो ये कास्केट सेरेमनी अरेंज किया है तुम्हारे शादी के लिए, ये कोई फालतू सिस्टम नहीं है, उन्होंने बहुत सोच समझ के किया है ताकि तुम्हारे साथ जिसका शादी हो वो एक सही आदमी हो और कोई गलत लड़का हाथ ना लगे. ओके. नेमली द चॉइस बिटवीन द 3 बॉक्सेस ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड लेड. तो एक्चुअली में यहाँ पर 3 कास्केट रहेंगे जिसका तुम्हारा चूज किया जाएगा. तो 3 कास्केट्स क्या है? गोल्ड, सिल्वर एंड लेड. तो बोलते हैं ये गोल्ड, सिल्वर एंड लेड तीनों जो कास्केट्स रहेंगे, इसी में से तुम्हारे पापा ने डिसाइड किया है कि जो सही कास्केट चूज करेगा उसके साथ तुम्हारा शादी होगा. in which the one who chooses his meaning correctly will win you, will, I have no doubt, never be guessed correctly by degree of love which you may have for any of those royal candidates for your love who have already come. ठीक है. तो बोलता है देखो बहुत सारे लड़के आने वाले हैं, ठीक है, और उसमें से हो सकता है कि गलत भी कोई हो. तो ये चीज़ जो है तुम्हारे पापा ने जो कास्केट सेरेमनी किया है, अकॉर्डिंग टू नेरिसा इट वाज ऑल ओके. ओके, और उससे कुछ गलत नहीं होगा. तो पर्शिया बोलती है कि अच्छा. नेरिसा थोड़ा देरी पहले क्या बोली कि घर में कोई लड़के लोग आए हैं उसको देखने के लिए. ओके, और मैनी सूटर्स वेर कमिंग ओवर देयर फॉर दैट कास्केट सेरेमनी. तो अलग अलग जगह से बहुत सारे लड़के आए हैं, हम लोगों को उसका डिस्क्रिप्शन पता चलेगा. तो नेरिसा बोलती है कि देखो ऑलरेडी तुम्हारा किस्मत का हीरो लोग आ गया है. तो पर्शिया बोलते ठीक है, एक के बाद एक मेरे किस्मत के हीरो के बारे में बताओ. प्लीज़ नेम देम ओवर. As you name them, I shall comment on them and according to my remarks, you may deduce my affections. ठीक है. अब देखो रियलिटी में नेरिसा was not willing to get married to someone whom she doesn't know. ओके, तो वो चाहती थी अपना चॉइस का किसी लड़के से शादी करे, लेकिन कर नहीं पा रही थी. उसके पापा ने ऐसा सिस्टम किया था शादी का. तो पर्शिया बोलती है ठीक है, बोलो कौन सा लड़का आया है, गिव मी द डिस्क्रिप्शंस, और मुझे क्या पसंद है और मैं उन लड़कों के बारे में क्या सोचती हूँ, आई विल लेट यू नो. तो नेरिसा बोलती है सी दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्शंस. जो नेरिसा एक एक तुम्हारा लड़के लोगों के बारे में बोलेगा, ठीक है, बोलेगी सॉरी. सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो नेरिसा बोलती है फर्स्ट देयर इज द नेपोलिटन प्रिंस. ओके, तो नेरिसा बोलती है देखो एक नेपोलिटन प्रिंस आया है. तो पर्शिया बोलती है ए दैट्स अ कोल्ट इंडीड for he doth nothing but talk of his horse and he makes it a great appropriation to his own good parts that he can shew himself. I am feared my lady this mother played false with a smith. ओके, तो देखो यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत स्लैंग टर्म्स यूज़ किया हुआ है, लेकिन इसका मतलब क्या है पहले ये वाला समझ लो. तो नेरिसा जैसा ही बोलती है कि प्रिंस फ्रॉम नेपल्स आया है, नेपोलिटन प्रिंस. पर्शिया बोलते हैं अरे ओ वो तो खुद एक जंगली घोड़ा लगता है मुझे, बच्चा घोड़ा. यस, जस्ट लाइक अ वाइल्ड यंग हॉर्स, ही डज नथिंग बट टॉक्स ऑफ हिज हॉर्स. बोलता है कि ये जो लड़का है ये अपने बारे में कम बोलता है, अपना घोड़ा का बारे में ज़्यादा बोलता है. एंड मेक्स इट अ ग्रेट पार्ट ऑफ हिज ओन क्वालिफिकेशंस दैट ही कैन शो हिज ओन हॉर्स. ठीक है, तो हमेशा वो अपना क्वालिटीज़ में घोड़ा को कैसे वो संभालता है, घोड़ा को शू पहनाना, ठीक है, शू मतलब जो हॉर्स के पैर के नीचे जो होता है, ठीक है, बोलता है वो सब हमेशा घोड़ा का लेके में बोलता है. मुझे तो लगता है उसी में ही वही घोड़ा है, ठीक है, उसका एटीट्यूड देख के ऐसा लगता है. आई फियर हिज मदर मस्ट हैव हैड अ लव अफेयर विद अ ब्लैक स्मिथ. मतलब पक्का ये लड़का कोई रॉन्ग अफेयर से दुनिया में आया है जिसके कारण ये लड़का ऐसा है. ओके, तो नेरिसा बोलते ठीक है, ऐसा जब तुमको ये पसंद नहीं है. और एक लड़का आया है, द जर्मन पैलेटाइन काउंट और द काउंटी पैलेटाइन. ओके, तो पर्शिया बोलती है ही डथ नथिंग बट फ्राउन एज हु शुड से एंड यू विल हैव नॉट हैव मी चूज. ही हियर्स मेरी टेल्स एंड स्माइल्स. Not I fear he will prove the weeping philosopher when he grows old, being so full of unmannerly sadness in his youth. I had rather be married to death's head with a bone in his mouth than to either of these. God defend me from these two. तो पर्शिया क्या बोलती है? पर्शिया बोलती है वो जर्मन वाला, वो तो और एक खतरनाक आदमी है. He does nothing but frown. बोले उसका मुंह सुबह से शाम तक हमेशा रोने जैसा दिखता है. Just as if to say I care little whether you want me or not.
तो वो आदमी का मुंह देख के कैसा लगता है, मानो वो बोल रहा है तुम मुझे पसंद करो या ना करो, मैं अपने दुनिया में हूँ, ठीक है। ये सब पोर्शिया का डिस्क्रिप्शन है, ओके। आई फियर ही विल प्रूव अ सैड फिलोसोफर, सॉरी आई मिस समथिंग, ही हियर्स गुड स्टोरीज विदाउट अ स्माइल। तो बोलते हैं ये जो जर्मन आदमी है इसको अगर तुम हंसी का भी स्टोरी सुना दो, ठीक है, तभी भी ये हंसेगा नहीं। आई फियर he will prove a sad philosopher when he is old, since he is full of such unpleasant gloom in his youth. Okay, तो बोलते हैं ये आदमी जब बूढ़ा हो जाएगा तो इससे बड़ा सैड फिलोसोफर कोई बनने वाला है नहीं, ठीक है। Since he is full of such unpleasant gloom in his youth. Okay, बोलता है ये जो आदमी जवानी में ही मुंह सुखा के बैठा रहता है उसका बुढ़ापा कितना डेंजरस होगा, सोच लो। ऐसा आदमी से शादी करने से अच्छा मैं कोई कंकाल के साथ शादी कर लूंगी। ओके, आई शुड रादर मैरी अ स्केलेटन, मैं स्केलेटन से शादी कर लूंगी जिसके मुंह के अंदर हड्डी घुसाया हुआ है। देखना तांत्रिक लोग लेके बैठते हैं ना, बोलते हैं मैं मुझे खोपड़ी से शादी करा दो कंकाल का, ठीक है, उस जिसका मुंह में हड्डी है। लेकिन ये सब आदमी से मत कराओ, ये आदमी तो अभी से रोंदू है, इसको हिंदी में बोला जाएगा तो रोंदू, ठीक है। बोलते हैं आदमी अभी से रोंदू है, बुढ़ा होगा तो खुद भी रोएगा, मुझे भी रुलाएगा, ठीक है। हे भगवान मुझे बचा लो इस दोनों आदमी से। तो प्रिंस ऑफ नेपल्स कैंसिल, जर्मन पैलेटाइन काउंट भी कैंसिल, ठीक है। नेरिसा को पोर्शिया को सब में कुछ ना कुछ कमी दिखता है एक्सेप्ट बसानियो, क्योंकि एक्चुअली में वो बसानियो को ही चाहती थी। ओके, तो देखो नेरिसा बोलती है हाउ से यू बाय द फ्रेंच लॉर्ड मॉन्शियर ली बॉन, ठीक है। तो नेरिसा बोलती है एक बॉन आया है, मैंने बॉन नहीं, वो फ्रेंच लॉर्ड मॉन्शियर है, ठीक है। तो बोलते एक फ्रेंच लॉर्ड आया है मॉन्शियर ली बॉन, तो कैसा, आपको इसके बारे में कुछ बोलिए, आप बॉन को पसंद करेंगे। पोर्शिया बोलती है गॉड मेड हिम एंड देयरफॉर लेट हिम पास फॉर अ मैन। इन ट्रूथ आई नो इट इज अ सिन टू बी अ मॉकर, बट why he hath a horse better than the Neapolitan, a better bad habit of frowning than the Count Palatine. He is every man in no man. If a throstle sing, he falls straight a capering. He will fence with his own shadow. If I should marry him, I should marry 20 husbands. If he would despise me, I would forgive him. For if he love me to madness, I shall never requite him. Okay, तब देखो इसका मतलब क्या है, पोर्शिया क्या बोलती है। पोर्शिया बोलती है कि ये लीबॉन से शादी करना और एक मुश्किल है। क्यों? पोर्शिया के लिए लीबॉन क्यों भयानक आदमी है? बिकॉज गॉड मेड हिम, वी मे कंसिडर हिम टू बी अ मैन। बोलते देखने में तो ये आदमी लगता है। आई नो इट इज रॉन्ग टू रेडिक्यूल अदर्स। पोर्शिया बोलते ऐसा मुझे किसी को बोलना नहीं चाहिए कि आदमी लगता है लेकिन आदमी नहीं है। बट ही इज मोर अटैच टू हिज हॉर्स देन द प्रिंस ऑफ नेपल्स। बोला कम से कम प्रिंस ऑफ नेपल्स हॉर्स के साथ जितना कनेक्टेड रहता था अपना, ये आदमी तो पूरे ही हॉर्स ही है, उसको देख के पूरा हॉर्स ही लगता है। ओके, ही फ्राउंस मोर देन इवन द जर्मन काउंट। तो बोलता है ये जर्मन काउंट से भी बेकार है। जर्मन काउंट तो फ्राउन जितना करता था, ये उससे दुगना फ्राउन करता है। ही हैज एवरी मैन्स फॉल्ट बट ही इज नॉट अ मैन एट ऑल। बोलता है ये आदमी में सब आदमी का फॉल्ट है, लेकिन ये आदमी खुद आदमी है कि नहीं मुझे डाउट है। ठीक है, आप समझ सकते हो क्या बोलना चाह रही होगी। ठीक है, बोलते हैं आदमी में मुझे आदमी होने का डाउट है। ठीक है, और इसमें सब आदमियों का गलती इसमें मुझे दिखता है। इफ ही हियर्स अ थ्रस्ट सिंग, ही बिगिंस टू लीप अबाउट एंड ही वुड ड्रॉ स्वॉर्ड अगेंस्ट हिज ओन शैडो। बोलते ये आदमी ऐसा पागल है, अगर पेड़ के डाली में कोई थ्रश इज अ बर्ड, ओके, इफ एनी बर्ड ऑल्सो सिंग्स, अगर कोई कोयल या कोई भी चिड़िया गाना गाए तो ये उठ के तलवार निकाल के फाइट करने के लिए रेडी हो जाएगा। इफ आई शुड मैरी हिम आई शुड बी मैरिड एज इफ टू 20 हस्बैंड। बोला इसको शादी करना मतलब 20 अलग अलग पागल से शादी करने जैसा है। ठीक है, इफ ही were to despise me I should never forgive him। तो बोलते ये अगर आदमी से गलती से मेरा शादी हो जाता है और ये अगर मेरे साथ धोखाधड़ी करता है तो मैं इसे कभी भी फॉरगिव नहीं करूंगा। बट इफ ही शुड लव मी पैशनेटली आई कुड नेवर रिटर्न इट। और अगर इससे शादी होता है और ये आदमी अच्छा निकल जाता है, मैंने मुझसे लव करता है, कैरेक्टर तो चेंज नहीं होगा किसी का, तो मैं इसको ना भी नहीं बोल सकती। तो एक्चुअली में पोर्शिया को सभी लड़के जो वहाँ पर आए हैं एक्सेप्ट बसानिया, बसानिया तो बहुत देरी में आएगा, तो ये सभी आदमियों में उसे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, ओके, सम demerits she can find, and she says that these boys are
नॉट फॉर मी। ओके, अब देखो क्या हुआ। नरिसा बोलती है व्हाट से यू देन टू फैल्कन ब्रिज द यंग बैरन ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, तो नरिसा बोलती है अच्छा एक ब्रिज वाला आदमी है, ब्रिज वाला आदमी नहीं, और नाम ही है ब्रिज, फैल्कन ब्रिज। बोले इंग्लैंड से एक जवान आया है, तो ये फैल्कन ब्रिज कैसा रहेगा आपके लिए। पर्शिया बोलती है बाप रे बाप, ये आदमी। देखो पर्शिया इसके बारे में क्या बोलती है, You know, I say nothing of him for he understands not me nor I him। ठीक है, तो देखो इसको मैं इजी लैंग्वेज में पहले बताता हूँ, तुम लोग बुक का टेक्स्ट से पढ़ना। ओके, पर्शिया बोलती है ये आदमी, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है तेलुगी और उड़िया का शादी। ठीक है, अब यहाँ तेलुगी उड़िया नहीं बोला हुआ है, मैं ऐसे ही बस जस्ट फॉर फन आई एम सेइंग कि अगर कोई तेलुगु आदमी के साथ कोई उड़िया आदमी का शादी हो जाए, उड़िया औरत का, ओके, तो दोनों में किसी का लैंग्वेज कॉम्बिनेशन तो रहेगा नहीं। तो पर्शिया बोलती है ना वो मुझे मेरा लैंग्वेज समझती है ना मैं उसका लैंग्वेज। ही स्पीक्स नीदर लैटिन, तो बोलता वो तो इंग्लैंड से, उसको ना लैटिन आता है, ना फ्रेंच आता है, ना इटालियन आता है। एंड यू कुड स्वेयर इन कोर्ट दैट आई हैव पुअर नॉलेज ऑफ इंग्लिश। पर्शिया बोलते हैं मुझे इंग्लिश नहीं आता और उसे लैटिन फ्रेंच वगैरह ये सब आता नहीं है, तो मैं जो बोलूँगी उसको उल्टा ही वो समझेगा। मैं उसको बोलूँगी सुबह जाके बाजार लेके आओ, वो सोचेगा कि जाओ बाहर जाके बर्तन मांज के आओ। ठीक है, तो हम लोगों के बीच में अगर शादी हो जाता है, ठीक है, दोनों का लैंग्वेज में इतना बड़ा डिफरेंस है कि आधा तो हम लोग एक दूसरे को समझने में ही हम लोगों का टाइम चले जाएगा। ओके, he looks a fine figure of a man। बोलते हैं दिखने में तो मैन दिखता है, ये पहले जैसा माने उसमें वुमेनली फीचर नहीं है, ये मैन ही है। ठीक है, बट who can hold conversation with a man by means of signs। बोलता मैं सुबह से लेके तो उसको साइन लैंग्वेज में नहीं बता सकती ना, क्योंकि हम लोग का जो नॉर्मल कम्युनिकेशन का लैंग्वेज है वो कम्युनिकेशन लैंग्वेज तो हम लोग से होगा नहीं। एंड हाउ स्ट्रेंजली ये ड्रेस है, सो बोलता और इसका ड्रेसिंग सेंस बहुत भयानक है। ठीक है, ये लुंगी के साथ ब्लेजर पहन लेने वाला आदमी जैसा है। ओके, सो यहाँ लुंगी वुंगी बोला नहीं है, तो व्हाट इज देयर, लेट अस सी। एंड हाउ स्ट्रेंजली ही ड्रेसेस, आई थिंक ही बॉट हिज जैकेट इन इटली। बोलते इसका जैकेट तो लगता है इटालियन है, ट्राउजर्स लगता है फ्रांस का है, टोपी पहनता है जर्मनी का। ठीक है, और पूरा देख के लगता है ये आदमी मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड से कुछ ना कुछ सामान उठा के पहना हुआ है। ठीक है, मतलब मैंने जैसे बोला अगर तुम लुंगी के साथ ब्लेजर और नीचे फॉर्मल शूज, ठीक है, हाथ में रोलेक्स का घड़ी, ठीक है, और सर में फिर से बांध लिया कुछ टर्बन, तो सोचो ये कॉम्बिनेशन कितना खतरनाक दिखेगा। तो वो बोलता है कि ये जो आपका फैल्कन ब्रिज है, तो फैल्कन ब्रिज काफ़ी खतरनाक ड्रेसिंग है, लड़का दिखने में अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ भाषा का प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं एक बोलूँगी वो एक समझेगा, वो एक बोलेगा मैं एक समझूंगी। सो आई कैनॉट मैरी दिस मैन बिकॉज देयर इज लैंग्वेज डिफरेंस, और इसका ड्रेसिंग सेंस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो नरिसा बोलती है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास और एक लड़का है। नरिसा पूरा लड़का लूंगा लिस्ट लेके बैठी है। ओके, नरिसा बोलती है व्हाट डू यू थिंक ऑफ द स्कॉटिश लॉर्ड हिज नेबर। तो बोलता है स्कॉटलैंड से एक लड़का आया है, ठीक है, उसी का नेबर है, कैसा लगता है आपको। पर्शिया बोलते हैं दैट ही सीम्स टू लव हिज नेबर फॉर इट टुक अ ब्लो ऑन हिज फेस फ्रॉम द इंग्लिशमैन एंड swore that he would return it whenever he was able. I think Frenchman stood security for him, taking a similar blow as if singing for him. पर्शिया बोलती है उसका नाम और मतलब, वो तो शादी करने आने से पहले एक बार मारपीट करके आया, किसी ने मार के उसका मुंह ऑलरेडी फुला दिया और वो बोला है मैं अभी शादी के लिए जा रहा हूँ तो नहीं मारूंगा, बाद में आके मारूंगा। ठीक है, तो बोलते है उसको छोड़ दो, और एक खतरनाक आदमी है वो तो मेरे को लेके अगर रास्ते में निकलेगा, गुंडा कभी अटैक कर दिया, ठीक है, गुंडा से मार खाने के बाद बोलेगा कि नहीं ये वाला दाग जाने दो, फिर आके मैं तुमको रिटर्न में मारूंगा। ठीक है, बोल तो उसके साथ शादी करना मुश्किल है। दैट ही सीम्स टू लव हिज नेबर फॉर ही टुक अ ब्लो ऑन हिज फेस फ्रॉम द इंग्लिशमैन एंड swore that he would return it whenever he was able। ठीक है, तो बोलते वो तो घर से निकलने से पहले इंग्लिशमैन जो फैल्कन ब्रिज था उससे एक मुक्का खा के आया है और बोल के आया है कि बाद में रिटर्न देगा जब उसके लिए पॉसिबल होगा। आई थिंक द फ्रेंच मैन स्टूड सिक्योरिटी फॉर हिम, टेकिंग अ सिमिलर ब्लो एज इफ साइनिंग फॉर हिम। बोलते ये आदमी तो मैंने मार खा के भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो ये सब आदमी ब्रेव नहीं है, मेरे साथ शादी होने से कहाँ खुद मार खा के आएगा और मैं मेरे ऊपर अटैक हो गया तो बचाने का चांस ही नहीं है। इतना कुछ बात बोला नहीं है, जस्ट फॉर गेटिंग द सेंस दैट व्हाट शी इज लाइकली टू से। I am saying something extra also, okay? Just for understanding the text better. Now see what does Nerissa say.
हाउ लाइक यू द यंग जर्मन द ड्यूक ऑफ सैक्सनीज नेफ्यू। ठीक है, तो नेरिसा बोलती है अच्छा, एक अच्छा लड़का है ड्यूक ऑफ सैक्सनी का भांजा नेफ्यू, इसके बारे में आपका क्या राय है। पर्सिया बोलती है कि अरे बाप रे बाप, तुमने तो खतरनाक खतरनाक लड़के लोगों का नाम लेके रखा हुआ है। ठीक है, इसके बारे में मैं जितना भी बताऊं कम है। क्या है इसमें प्रॉब्लम? वेरी बैडली इन द मॉर्निंग व्हेन ही इज सोबर एंड स्टिल वर्स इन द आफ्टरनून। ठीक है, व्हेन ही इज ड्रंक। तो बोलते ये तो काल पियक्कड़ आदमी है। अब देखो ये सब वर्ड्स तुम लोग यूज नहीं करोगे, काल पियक्कड़ एंड ऑल दिस थिंग्स, एज आई एम सेइंग इट इन हिंदी, सो द वर्ड्स आर लाइक दैट। तो बोलते हैं ये ही इज अ ड्रंकर्ड। ओके, बोले सुबह उठता है, उठ के दांत ब्रश करने से पहले पी लेता है, ऐसा आदमी है। ओके, वेरी बैडली इन द मॉर्निंग व्हेन इज सोबर। तो बोलता है वो सबसे कम पीता है सुबह, तब फिर भी सोबर लगता है। ठीक है, आफ्टरनून तक सिचुएशन बिगड़ते रहता है क्योंकि सारा दिन दूसरा कुछ नहीं खाता है, सिर्फ ड्रिंक करता है। When at his best he is a miserable type of man। तो बोलता है जब सबसे पी लिया, माने मोटा मोटी अच्छा लेवल तक पी लिया तो मिजरेबल कंडीशन होता है, और रात तक जब पूरा पेट फुल पी पी के तो 20 से कम नहीं है। ठीक है, लेट द वर्स्ट हैपन, आई होप आई शैल नॉट हैव टू एक्सेप्ट हिम। बोलते ये आदमी के साथ रहेंगे तो ये सुबह से शाम पीता रहेगा और पता नहीं घर में आएगा भी कि नहीं, कि रास्ते में नाली में गिरा रहेगा। इसके साथ बाबा शादी होने से अच्छा है मैंने जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं। मैंने she wishes that I shall remain as a maiden forever rather than marrying such a drunkard। नेरिसा बोलती है if he should volunteer to make the choice and should choose the right casket, you would be refusing to honor your father will if you did not accept him। तो नेरिसा बोलती है कि देखो अगर ये लड़का सही कास्केट चूज किया कर लिया तो तब तो तुमको शादी करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या करोगे, नहीं तो तुम्हारे पापा का विल को तुम्हारा माने तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे, ऐसा बात हो जाएगा। पर्सिया बोलती है उतना सोचने की जरूरत नहीं है, आदमी इतना पियक्कड़ है ना, इसके लिए एक गलत कास्केट के ऊपर जाके रख दो एक बोतल। ठीक है, वो वहीं पर से बोतल लेके घर निकल जाएगा। ठीक है, उसको बोतल छोड़ के कुछ दिखता भी नहीं है, और कास्केट वास्केट दूर की बात है। तो पर्सिया says, therefore for fear of the worst I pray thee set a deep glass of Rhenish wine। Okay, Rhenish wine is a sort of wine, okay, it's a sort of drink। On the contrary casket, गलत casket को ऊपर रख दो, for if the devil be within and the temptation without, I know he will choose it। I will do anything नेरिसा, here I will be married to a sponge। तो बोलता है मैं स्पॉन्ज से तो शादी नहीं करने वाली हूँ। स्पॉन्ज का मतलब क्या? ड्रंकर्ड। मतलब स्पॉन्ज कैसा चीज़ होता है, उसमें कुछ भी डालोगे तो पूरा पानी से भर जाएगा ना। तो बोलते हैं ये पूरा भरा हुआ है। ठीक है, मैंने क्या बोलोगे, ड्रिंक से भरा हुआ है। तो ये ड्रिंक से भरा हुआ आदमी से हमको बचा लो, पागल से शादी कर लेंगे लेकिन पियक्कड़ से नहीं। एक्चुअली में पर्सिया किसी से शादी करना नहीं चाहती है एक्सेप्ट बसानियों। तो हाँ है, ये सब लड़के में कमियां हैं। ठीक है, लेकिन जो वो बताती है उसमें उसका खुद का थोड़ा एड ऑन भी है। ओके, दिस इज अकॉर्डिंग टू द रीडर्स लोग पढ़ के उनको ऐसा फील होता है। तो नेरिसा लास्ट में क्या बोलती है देखो, यू नीड नॉट फियर लेडी द हैविंग एनी ऑफ दीज लॉर्ड्स, दे हैव acquainted me with their determinations, which is indeed to return to their home and to trouble you with no more suit unless you may be won by some other sort than your father imposition depending on the casket। तो नेरिसा बोलती है कि देखो डरने का कोई बात नहीं है, हैविंग टू एक्सेप्ट एनी ऑफ दिस लॉर्ड्स, इन लोगों को तुम्हें चूज नहीं करना पड़ेगा। दे हैव इन्फॉर्म्ड मी ऑफ द डिसीजन, इन लोगों ऑलरेडी अपना डिसीजन ले लिया है, एंड दैट इज टू रिटर्न टू देयर होम्स एंड टू ट्रबल यू नो मोर विद देयर सूट्स। तो बोलते हैं इन लोग ऐसे ही घर चले जा रहे हैं। ठीक है, और इन लोग तुमको और ट्रबल नहीं करेंगे, इन लोग क्वालिफाई नहीं हुए, फर्स्ट राउंड क्वालिफाई नहीं हुए। ठीक है, अनलेस यू आर टू बी वोन by some other means than your father's behest of the method of casket। ठीक है, तो बोलते हैं इन लोग, क्योंकि देखो कास्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है कि तुम अगर हार गए तो किसी से शादी नहीं कर सकते, सो एंड सो बहुत सारा चीज़ें है। हम लोग बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में। तो पहले सब कंडीशंस लड़के लोगों को बताया जाता है, तो जिन लोग एक्सेप्ट करेगा उन लोगों की कास्केट तक लाया जाएगा। ठीक है, तो जितने लड़के आए थे उन लोगों ने किसी ने भी ये सब चीज़ को एक्सेप्ट शायद नहीं किया हो, या उन लोग में कुछ कमियां निकल गया है, तो उन लोग फर्स्ट राउंड से ही उन लोग आउट है। ओके, तो नेरिसा बोलते हैं चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो
तुम ये सबसे तो एटलीस्ट अभी सेफ हो। तो पोर्शिया तभी बोलते हैं, इफ आई लिव टू बी एज ओल्ड एज सिबिला आई विल डाई एज चेस्ट एज डायना unless I be obtained by the manner of my father's will. I am glad this parcel of wooers are so reasonable, for there is not wooers are so reasonable sorry, I missed one line. I am glad this parcel of wooers are so reasonable, for there is not one among them, but I dote on his very absence, and I pray God grant them a fair departure. Okay, तो पोर्शिया यहाँ क्या बोलती है? पोर्शिया बोलती है कि if I were to live to be as old as ancient Sibyl, I should die as much as virgin as Diana, unless I am born in the manner laid down in my father's will. तो पोर्शिया बोलती है कि मैं शादी पापा के विल से ही करूँगी, पापा का विल में जो लिखा हुआ है उस हिसाब से ही करूँगी। अगर मेरा शादी उस हिसाब से नहीं होता है, ठीक है, तो मैं ज़िंदगी भर डायना जैसा वर्जिन रह जाऊंगी, ठीक है, और मुझे मैं शादी नहीं करूंगी। आई एम ग्लैड दैट दिस क्राउड ऑफ वर्ड्स आर सो रीजनेबल, फॉर देर इज नॉट वन ऑफ देम हुज एब्सेंस आई डू नॉट लॉन्ग फॉर, एंड आई प्रे गॉड टू ग्रांट देम अ हैप्पी डिपार्चर। तो बोलता है इन लोग चले गया है, ये लेके मैं हैप्पी हूँ और आशा करती हूँ कि ऐसा लड़का मेरे किस्मत में ना आए, नहीं तो शायद मुझे ज़िंदगी भर कुआरा भी रहना पड़ सकता है, ठीक है, कुआरी सॉरी माने विदाउट गेटिंग मैरिड। तो नेरिसा क्या बोलते हैं? नेरिसा बोलते हैं, डू यू रिमेंबर लेडी इन योर फादर्स टाइम अ वेनेटियन, अ स्कॉलर एंड अ सोल्जर दैट केम हीदर इन कंपनी ऑफ मार्क्विस ऑफ मॉन्टफेराट। तो नेरिसा देखो अब मेन टॉपिक में आती है। नेरिसा बोलती है, मैडम आपको एक लड़का याद है, कोई हीरो आपसे मिला था, एक आपका सोल्जर है, स्कॉलर है, वेनिस से आया था, वो केम हियर इन द कंपनी ऑफ मार्क्विस ऑफ मॉन्टफेराट, ठीक है, बोलता है एक कंपनी के साथ आया था, ठीक है, ग्रुप के साथ, आपको याद है? पोर्शिया बोलती है, यस इट वाज बसानियो एज आई थिंक सो वाज ही कॉल्ड। ये सब नाटक है पोर्शिया का, पोर्शिया को सब याद है। तो पोर्शिया बोलते वही लड़का ना, क्या नाम था उसका, बसानियो ना क्या, बस कुछ नाम है उसका। नेरिसा बोलते हैं हाँ वही बस वाला ही बसानियो है। ओके, ट्रू मैडम, ही of all the men that ever my foolish eyes looked upon was the best deserving a fair lady. तो नेरिसा बोलती है, ट्रू मैडम, of all the men that ever my foolish eyes looked upon। तो नेरिसा भी उसको देख रही थी, ठीक है, क्योंकि लड़का इतना दिखने में अच्छा था। तो नेरिसा बोलती है, मैंने तो बहुत लड़का देखा है, लेकिन वही लड़के को देख के मुझे कुछ फील हुआ। तो पोर्शिया बोलते क्या? नहीं, ऐसा फील हुआ कि वही आपके लिए सही लड़का है, ठीक है। पोर्शिया बोलती है, आई रिमेंबर हिम वेल एंड वॉट आई रिमेंबर मेक्स मी एग्री दैट ही इज़ वर्दी ऑफ योर प्रेज। पोर्शिया बोलते हैं हाँ ठीक है, मेरे लिए सूटेबल है, ऐसा अगर तुम सोचते हो तो बात कोई गलत नहीं है, और सच में लड़का बहुत प्रेज वर्दी है, एक बार मिले लेकिन हमेशा के लिए वो दिल में रह गया मेरा। ओके, नाउ दीज आर क्वाइट चीजी लाइन्स, ओके, बट don't write these lines. Again I am saying these are just for understanding the text. What Portia feels regarding Bassanio, to get it into our mind, we are reading the story, reading the play in such a way. Okay, now see what happens. यही time में एक servant आता है. Okay, enters a servant. Hulloa, what is the news? Servant बोलता है, the 4 visitors wish to see you, madam, to take leave of you. Then there is an advance messenger come from a 5th, the Prince of Morocco. अब देखो इतने सारे पहले निकल गए, 4-5 लड़के, फिर से 5 लड़के आए। तो बोलता 4 लड़का आया है आपका मैसेज लेके कुछ, और एक प्रिंस ऑफ मोरक्को बोल के भी एक जन आया है, ठीक है, मोरक्को जगह का नाम है, तो प्रिंस ऑफ मोरक्को आया है। ये बहुत फनी कैरेक्टर है, वी विल रीड अबाउट हिम इन सीन 3, ओके, मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो। तो सी, 5th, the Prince of Morocco, who brings word that the prince, his master, will be here tonight. Okay, तो बोलता है प्रिंस ऑफ मोरक्को भी रात तक आने वाला है, ऐसा खबर आया है। पोर्शिया बोलती है, if I could bid the 5th welcome with so good heart as I can bid the other 4 farewell, I should be glad of his approach. ठीक है, पोर्शिया बोलती है कोई बात नहीं है, if I could welcome this 5th suitor as gladly as I say farewell to the other 4, I should be glad to hear his arrival. बोले जैसे मैंने 4 को भगाया है,
वैसे ही मैं इसको भी अभी के लिए हाँ बोल देती हूँ, फिर बाद में देखा जाएगा। मैं ग्लैड हूँ, आ रहा है, आने दो। If he happens to have the virtues of a saint but the black complexion of a devil, I should prefer to have him for religious consolation rather than a husband। ठीक है, तो देखो प्रिंस ऑफ मोरक्को जो है, एक्चुअली मोरक्को जो जगह है वहाँ पर बहुत हीट है, तो लड़के जनरली बहुत डार्क होते हैं। अब पोर्शिया को काला लड़का पसंद है नहीं, ठीक है, तो पोर्शिया बोलती है कि लड़का अगर सेंट जैसा है लेकिन काला है, मन से अच्छा है, और काला कितना काला है, डेविल जैसा काला है, तो मैं उसको हस्बैंड मानूंगी, मैंने प्रेफर करूंगी जस्ट फॉर रिलीजियस कंसोलेशन। ठीक है, बस मन को शांति देने के लिए हाँ एक हस्बैंड है, लेकिन रियलिटी में मैं उसको अपना मन का चॉइस का हस्बैंड जैसा नहीं मानूंगी। ठीक है, लड़का अच्छा है लेकिन काला, लेकिन पोर्शिया के लिए एक्चुअली दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, मन से अच्छे के साथ दिखने में भी अच्छा होना चाहिए। तो पोर्शिया बोलते हैं प्रिंस ऑफ मोरक्को कैसा है देखते हैं, ठीक है, काला हुआ और मन से अच्छा हुआ तो ठीक है, हाँ बोल देंगे, लेकिन हस्बैंड जैसा नहीं मानेंगे। ठीक है, कम नेरिसा, लीड ऑन सर्वेंट, एज वी आर गेटिंग रेड ऑफ 4 सूटर्स, अनदर इज नॉकिंग एट द डोर। तो पोर्शिया बोलती है देखो एक गधा गया, 4 गधे गए, तो नया गधा आके खड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ गधा वर्ड यूज नहीं है, वो सूटर्स है। ओके, हर फीलिंग इज ऑफ दैट सॉर्ट। ओके, कि 4 सूटर्स हैव गॉन विथ आफ्टर सो मच एफर्ट, नाउ one has come to try his luck. So all of them goes out of that particular place, and let us see what will happen in Act 1 Scene 3 in the next video. I hope you have understood the explanation properly. So that's all in this particular video.